Welcome to TwoCircles.net. We are here in Jaipur speaking to Mr. Rashid Hussain, engineer. He is the State Chief of Welfare Party of India. So, sir, your party is going to contest this state elections. Is first in this state. So, what are your plans? How many candidates you are fielding in this election? This time we have just decided to fill up 5 candidates, but one candidate was unable to fill up, but 4 candidates finally contesting, and one from Jaipur Hawa Mahal seat, senior advocate from Rajasthan High Court, Advocate Pekar Farooq, and second candidate is retired additional commissioner Mushtaq Ali Saab. He is fighting from Junjunu. And third candidate is fighting from Sawai Madhepur, Firasat Saab, and fourth candidate is from Kota South, Saifullah. So these 4 candidates are in fact right now. And I just filled up. So have you prepared any manifesto for your party? Manifesto is still we have not finalized. Still we have not finalized. You can say that, but we have. Are you working on something particular? Yes, of course. Actually, we are just saying that what are the main issues in this state which was not addressed by the ruling parties, and especially the minorities and the weaker sections. So even in this state, we are that issues of minorities is also not addressed completely. You can see the Gopalgarh issue. You can see the Phul Muhammad Surwal. I think more than 40 communal violence happened in this government, and very few officers got the punishment. So even the same thing happened with Dalits also. Dalits issue is also not addressed here completely, and the ruling class, the ruler class of Rajasthan, they are not giving the proper space to the Dalits and the lower caste of lower caste of Rajasthan. Like, what are the main issues in these 4 constituencies you are contesting when you're approaching the voters, or what are the main issues you are raising? The main issue in Rajasthan basically is that corruption among the politicians. In fact, that this government is having 4 ministers right now. 3 ministers is already in jail. Okay, for the rape cases and all. There is now 2 more. Okay, one minister just 15 days back sent to jail, and one minister is already under the scanning. So 4 ministers are already proved they are not doing their commitment with that weaker section of especially for the women. And second thing, जो यहाँ जो सबसे बड़ा जो मुद्दा जो बताया जा रहा है कि भाई आपने जो भी स्कीम्स जो आपने दिया है वो they have just given the last 6 months. Government were not at all, मतलब शुरू के 4.5 साल में गवर्नमेंट को जो पब्लिक वेलफेयर के जो काम जो भी करना था या जो कमिटमेंट था उस पर कुछ भी नहीं हुआ. यानी 4-4.5 साल तक तो पूरा लूट चला यहाँ. उसके बाद इलेक्शन के जस्ट 6 months बिफोर जो है दे स्टार्टेड गिविंग सम स्कीम्स. ठीक है, जिसका ऐसा लगता है कि भाई बेसिकली आप अपनी जनता को, अपने गरीब लोगों को सिर्फ भीख दे रहे हो. ठीक है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में सत्ता पे, खजाने पे जो सभी लोगों का जो अधिकार होना चाहिए, हक होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है लोगों को. So, apart from the general public, you are also contesting on minority concentrated constituencies. Of course, minority we have many big issues, especially the Gopalgarh issues. We were fighting from very beginning, even before the launching of this political party in Rajasthan. Gopalgarh में आपको मालूम होगा ऐसे ऑलरेडी आप गए हैं कि भाई 10 लोगों को वहाँ पे मारा गया. ठीक है, ऑल बिलोंग्स फ्रॉम माइनॉरिटी. मस्जिद के अंदर में घुस करके आपकी फोर्सेस और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो घुस करके वहाँ फोर्सेस के साथ जाकर मस्जिद के अंदर में 200-250 फायरिंग जो है मस्जिद के अंदर में की गई है. कहा था कि जलियांवाला बाग से भी ज़्यादा फायरिंग हुई है वहाँ पे. तो किस पे निहत्थ होंगे? कोई आंसर को नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है वहाँ पे. इधर से जो देखा जा रहा है तो इधर से ना तो कोई एक साहब इनका कोई भी एक आदमी घायल नहीं था दूसरी कम्युनिटी का, ना तो कोई पुलिस फोर्स में कोई घायल था.
लेकिन जब इंक्वायरी शुरू होती है, जब पुलिस का प्रोसेस शुरू होता है, तो दो लोग उधर से भी उठा रहे हैं, दो लोग उधर से उठा रहे हैं। यानी पुलिस का सेकुलर नेचर जो है या एडमिनिस्ट्रेशन का सेकुलर नेचर जो है वो दिखा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में। लेकिन जब माइनॉरिटीज को आप मार रहे थे या उनको जो कर रहे थे, चला रहे थे, उस टाइम उनका सेकुलर नेचर खत्म हो गया था। उस टाइम में वो उस बनवाइयों का एक पार्ट बन गए थे। पुलिस फोर्स हिमसेल्फ वाज द पार्ट ऑफ, ठीक है, दैट प्रोसेशन ऑलरेडी है उनके पास वीडियो जो सब है, जिसको सीबीआई भी। दूसरी बात, सीबीआई का जो जांच का जो भी हम लोग नो डाउट इनिशियली वी डिमांडेड फॉर द सीबीआई इंक्वायरी, लेकिन सीबीआई का जो है वो जो लोग जिन पे आया है, जो लोग विक्टिम्स हैं, विक्टिम्स के एफआईआर को बिल्कुल उन लोगों ने खत्म कर दिया है। जो पुलिस की जो एफआईआर है उस पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। भाई पुलिस जब खुद मुजरिम है, जब वहाँ के लोग कह रहे हैं, गवाही भी बता चुके हैं कि पुलिस खुद मुजरिम है, उसके बाद भी आप उन्हीं के एफआईआर पे कार्रवाई कर रहे हैं। और माइनॉरिटीज के लोगों को, एक फैमिली के 3 लोगों को, फिर 2 लोगों को, यानी 4-5 लोगों को पकड़ रखा है, और अभी भी कितने लोगों को नोटिस देकर वो हरास कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये 5 लोगों को जब आप जुर्म देखेंगे तो इन पे क्या है भाई, इन्होंने फोन किया है, तो नारा लगाया है, तो घर पे चढ़ के नारा लगा रहे थे। अब कोई आदमी किसी को कोई मारने आ रहा है तो भाई वो आप नारा ही मत लगाओ, आप फोन भी किसी को मत करो, आप 10-20 लोग का होकर के मीटिंग भी ना करो। और एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि भाई कैसे लोग हैं। तो इन्होंने जो भी किया, सिंपल बात है कि आप जब एक्चुअल कल्प्रिट को पकड़ोगे नहीं। और एक चीज़ और जो बार बार जो आ रही है कि भाई आप डिले इन जस्टिस की जो बात हो रही है, जो डिले का जस्टिस जो साफ लग रहा है डिनायल इन जस्टिस। एक गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, दूसरी गवर्नमेंट फिर उसको भूल जाती है। तो आप जो गोपालगढ़ का मुद्दा है उससे ज़्यादा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? वो मुद्दा जो है इस बार इलेक्शन का एक बड़ा मुद्दा रहेगा माइनॉरिटीज के बीच में, ठीक है। दूसरा एक गुल मोहम्मद का जो है वो भी मसला, नो डाउट ये कांग्रेस की और कई बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेचर जो है ये, हमने किसी के साथ किसी घर के लोगों को मार दिया, किसी लड़की का रेप कर दिया, कुछ भी कर दिया, उसके बाद गए वहाँ सरकार पहुँचती है वहाँ पे और कुछ कंपनसेशन दे देती है। तो कंपनसेशन एक पार्ट है, ठीक है, उसके जख्म पे मरहम पट्टी रखने का। लेकिन कोई भी सरकार या कोई भी गवर्नमेंट अगर चाहती है कि ये जो वारदात दोबारा ना हो, उसका बेस्ट तरीका है कि जो भी इसका कल्प्रिट है, जो भी मुजरिम है, उसको आप जो है अकॉर्डिंग टू द लॉ उसको आप सजा दो। लेकिन यहाँ पर लगता है कि सरकार सजा नहीं देना चाहती है, ठीक है, वो है मेजोरिटी वोट पॉलिटिक्स की वजह कर। उस पॉलिटिक्स की वजह कर आप सजा नहीं देते हो लोगों को और उसके बाद उसको खुला छोड़ देते हो, तो वो तो फिर बार बार होगा वो। अब बार बार लोगों को आप 5 लाख 10 लाख कंपनसेशन देते रहोगे, अब बार बार लोगों को मरवाते रहोगे आप। So you haven't seen any difference between BJP and Congress government? No, difference is there. Difference is there. Of course, I can't say there is no any difference between Congress and BJP. There is difference. There are many differences. See, one party, the BJP himself, जिसका total agenda 100% agenda उसका कॉमनल है, ठीक है। उनकी जो कहा जाए कि आइडियोलॉजी कॉमनल है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी और उनके 100% कैडर्स को वी कैन नॉट से लाइक बीजेपी, ठीक है। तो कांग्रेस में लेकिन कुछ लोग जो हैं, और हो सकता है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। और अभी तो आपने देखा कि राहुल जो कि इनके युवराज हैं, जो इनके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, उनका जो मुजफ्फरनगर का जो स्टेटमेंट है, इट्स रियली हाईली पेनफुल फॉर द होल माइनॉरिटी कम्युनिटी। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि आप 5 स्टेट में इलेक्शन के लिए जा रहे हो और अभी तक उस बयान को सही से आपने उसको वापस नहीं लिया। ये अलग बात है कि हमारी लीडरशिप में कमजोरी है अभी कि वी हैव नॉट डिमांडेड इन प्रॉपर वे, बट रिएक्शन तो आ गया सब जगह कि भाई दैट सच स्टेटमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन राहुल गांधी ने क्यों बोला, किसने बुलवाया, ठीक है, क्या उसके पीछे इंटेंशन था, और 10 दिन के बाद पटना में फिर क्या होता है, ठीक है। पटना में फिर जो हुआ उसको फिर देख लीजिए कि फिर मीडिया का क्या रोल है वहाँ पे, और मीडिया फिर जो अब जो वहाँ पे जो चीज़ें निकल के आ रही है वो क्या आ रही हैं। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें क्या, ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट नहीं देख, मतलब लोग नहीं देख रहे हैं। जो वीकर सेक्शन है वो इन चीज़ों को बहुत क्लोजली वॉच करता है, देख रहा है। वो अलग बात है कि दे आर जस्ट लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव। तो हम जो है वेलफेयर पार्टी का जो पॉलिटिक्स है वो बेसिकली जो मार्जिनलाइज लोग हैं, जो वीकर सेक्शन है, ठीक है, उसकी जो डिमांड्स हैं, जो डिमांड्स को मेजोरिटी की जो 2 बड़ी पार्टियां उसको फुलफिल नहीं कर पा रही हैं, आइदर स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, हम उनको जो है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। So, Rajasthan is a state where elections are closely contested. People candidates lost with a few number of votes. So the 5 constituencies which you are going to contest, do you think you're going to play the role of spoiler for Congress in a way?
बट द सेम थिंग हैपेंड और सेम थिंग लालू ने भी किया था, सेम थिंग मुलायम ने भी किया था, लेकिन व्हाई नॉट सच क्वेश्चन अराइज ऑन दैट टाइम। प्रॉब्लम ये होता है कि अगर माइनॉरिटी का कोई भी कैंडिडेट या माइनॉरिटी के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर पॉलिटिकल कोई इनिशिएटिव ले रहा है तो उस पर आप जो है बोलते हैं भाई वी आर डूइंग द पॉलिटिक्स ऑफ माइनॉरिटी ओनली। भाई लालू पे ब्लेम क्यों नहीं लगा, ममता पे ब्लेम क्यों नहीं लगा? ममता अगर वोट काट रही थी बीजेपी तब भी वहाँ पर थी। जब मुलायम जब वोट अभी काट रहे थे तो वहाँ पे बीजेपी, यूपी में भी बीजेपी थी, बिहार में भी बीजेपी थी। तो आप उनके इनिशिएटिव पर तो सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन हम अपने दर्द को खुद लेके जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे इनिशिएटिव सवाल उठाया जा रहा है। तो ये सवाल नहीं है एक्चुअली, मीडिया जो है वो दे आर जस्ट ट्राइंग टू डेविएट और समझे कि वो इश्यूज को दूसरी तरह दिखाना चाहते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल नाउ। कि भाई हम ऐसा नहीं है कि भाई अगर कोई कह रहा है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी इज ओनली सेकुलर, नॉट सेकुलर, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। और ये भी नहीं है कि माइनॉरिटी ने सिर्फ सेकुलर का टीका ले रखा है, सेकुलरिज्म का, दोनों चीज़ें हैं। भाई सिंपल सी बात है कि जो मेन स्ट्रीम का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को हम लोग काफ़ी क्लोजली वॉच कर रहे हैं, ठीक है। और टाइम टू टाइम हम लोग रेजिस्टेंस भी देते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस किसी एनजीओ के थ्रू, किसी जमात के थ्रू कहीं से आता है तो उसको गवर्नमेंट पर उतना असर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम जो मेन स्ट्रीम का पार्ट बन के अगर हम इफ विल कम आउट विद सम रेजिस्टेंस तो डेफिनेटली हम समझते हैं कि हम और बेटर इस कंट्री के एनवायरनमेंट को कर सकते हैं। सो द 5 कॉन्स्टिट्यूंसी विच यू आर कंटेस्टिंग, आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा आपकी उम्मीद कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी पर है? नहीं, ये तो पता नहीं है, तो अभी डिस्क्लोज करना भी मेरे लिए सही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम जिस कंस्टिट्यूंसी को भी डिक्लेयर करेंगे सबसे ज़्यादा क्लोज है, वहाँ पर दूसरे वाले को टेंशन बहुत बढ़ जाएगा, फिर दे विल स्टार्ट मैनिपुलेशन, ठीक है। तो अभी उसको इट्स रियली नॉट गुड फॉर मी कि भाई हम। पर आपकी उम्मीद सबसे ज़्यादा कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी? in terms of number, are you like how hopeful are you? नहीं, एटलीस्ट मैंने पहले भी मीडिया में डिक्लेयर किया है कि एक दो जगह आपको सरप्राइजिंग रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। बट दैट नेम आई कैन नॉट डिक्लेयर, बट वी आर वर्किंग फॉर दैट कि भाई सरप्राइज रिजल्ट आपको मिलेगा एक दो जगह से। By surprising result, you mean your candidate will win or They it will cut? can. People are saying the same thing, ठीक है। नो डाउट अभी हम लोग अगर देखें तो भाई नो डाउट जो आज के इलेक्शन का जो प्रोटोकॉल जो बना हुआ है, ठीक है, उस प्रोटोकॉल में जहाँ पर सिर्फ एवरीथिंग इज डील बाय द मनी, ठीक है, बट बोथ पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली इन राजस्थान, इन अदर प्लेस आल्सो सेम थिंग इज गोइंग ऑन। तो हम लोग उस पर नहीं जाते, हम लोग कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, ठीक है। हम लोग बिल्कुल चाह रहे हैं कि जो सोशलिस्ट की पॉलिटिक्स है, जो कम्युनिस्ट की जो पॉलिटिक्स है, उस तरह से हमको जो है स्लोली जाना है, ठीक है। हमारे कैडर खुद कमिटेड कैडर्स होंगे, ये नहीं कि हमारे पेड वर्कर्स को हम लेकर रोड पे नहीं आएंगे। आज के दिन में मैं बताऊं कि कांग्रेस कई कंस्टिट्यूंसी में कांग्रेस से ज़्यादा वर्कर हमारे पास है, और उसका एक रिजल्ट आपने भी देखा जो है, ठीक है, उसको आपने खुद ही देखा कि भाई अभी उस कैंडिडेट को आई हैव नॉट अलाउड फॉर कंपेनिंग, ठीक है, बट स्टिल दे आर अफ्रेड। व्हाई? बिकॉज वी हैव मोर वर्कर देयर। इफ विल जस्ट गिव द ग्रीन सिग्नल फ्रॉम हियर टू स्टार्ट वर्किंग, वो कैंडिडेट बैकफुट पे चला जाएगा। कहने का मतलब है कि ऑलरेडी कैडर बेस्ड पार्टी है ये, इस चीज़ को सब लोग जानते हैं। और कैडर हमारे नो डाउट कमिटेड कैडर्स, ठीक है, जिनका मार्केट में वैल्यू लगाना इतना आसान नहीं है। तो ये हम नहीं चाहते कि जो अभी के जो इलेक्शन का जो प्रोटोकॉल है, जो कि हर इलेक्शन में नो डाउट इलेक्शन कमीशन इज डूइंग देयर ग्रेट जॉब। आज भी सुबह में उठ के जब देखा कि भाई समोसा और चाय पर भी जो पाबंदी है उसका बिल भी, इट्स वेरी गुड, बट हाउ प्रैक्टिकल इट इज and really it's for the bigger two parties in Rajasthan or only for the smaller parties. So coming to the important question, आप लोग की पार्टी का मतलब असल मकसद है कि लीडरशिप चेंज, तो आप कमिटेड लीडरशिप लाना चाह रहे हैं, तो आपके हिसाब से यहाँ पे राजस्थान में तकरीबन 11-12 मुस्लिम MLAs हैं, तो आपको लगता है कि अभी असेंबली में मुसलमानों की नुमाइंदगी सही तरह से हो पाई है? नहीं, देखिए कांग्रेस की लीडरशिप में मैं बताऊं कि स्टेट तो खैर दूर की बात है, सेंटर में भी जो कांग्रेस के लीडर्स जो हैं, मुस्लिम लीडर्स हैं, दे आर नॉट मुस्लिम लीडर्स। आई डोंट वांट टू टेल यू द नेम, ठीक है ना, फ्रॉम लास्ट 10 to 15 years आई एम सेइंग दिस, दे आर ओपनली सेइंग आई एम नॉट अ मुस्लिम लीडर, आई एम कांग्रेस लीडर। व्हेनेवर मुस्लिम इशू कम्स, ठीक है, दे आर गेटिंग, भाई उनको टिकट मिलता है मुसलमान होने की वजह कर, उनको मुस्लिम वोट देते हैं, ठीक है, लेकिन जब इश्यूज आते हैं तो वो साफ बोल देते हैं कि वी आर नॉट द मुस्लिम लीडर्स। तो भाई मुसलमान किसके पास जाएगा? भाई बाकी सिंपल सी बात है कि बाकी दूसरी कम्युनिटी का जाट लोग अपने भाई जाट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गुजर लोग गुजर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मीना की पॉलिटिक्स कर रहा है, वो ओपनली करते हैं। यादव की पॉलिटिक्स कर रहा, वो अपने आप को यादव लीडर कहता है कि ये साहब यादव लीडर, जाट कहता है कि ये साहब जाट लीडर। भैया जिसने कहते हैं इस चीज़ को, मुलायम कहते हैं इस चीज़ को,
ठीक है, तो ये चीजें व्हाई नॉट मुस्लिम लीडर्स आर डूइंग द सेम। We want to provide an alternative. ऑफ कोर्स माइनॉरिटीज को जो इतना बड़ा जो ये है कि भाई हम अगर 15% 20% जो पॉपुलेशन है वो अगर बिल्कुल इस तरह की लीडरशिप पे नाउ दे आर नॉट डिपेंडेंट, भाई कई स्टेट में तो ऑलरेडी इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ठीक है, बिहार यूपी को आप अच्छी तरह देख रहे हैं, साउथ में कई स्टेट देख रहे हैं, लेकिन हम वो भी नहीं चाहते हैं। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि साउथ में एक पॉलिटिक्स जो वहाँ डेवलप हो रही है वो वैसी की पॉलिटिक्स है, ठीक है, जो बिल्कुल अल्टरनेटिव दिखता है किसी दूसरे तरह का। सो वी रियली डोंट वांट दैट पॉलिटिक्स आल्सो, जिसको हेटेड पॉलिटिक्स का नफरत की राजनीति जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग जो है कम से कम वेलफेयर पार्टी उस तरह की पॉलिटिक्स को रियली इंकरेज नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे पार्टी में सभी लोगों को इक्वल स्पेस दिया जाएगा, सभी जो भी खासकर जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, ठीक है, जो रूलिंग क्लास है उसको तो हमारी जरूरत नहीं है, वो तो हमको बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन जो जिनके साथ खास के आप दलितों के साथ जो इश्यूज हो रहे हैं, आप जब उनके इश्यूज को जाकर देखेंगे तो माइनॉरिटीज से भी ज्यादा खतरनाक चेहरे तो ये मुस्लिम पॉलिटिकल राइज राजस्थान में पोलराइज नहीं कर देगा अदर कम्युनिटीज को? नहीं, वो उस तरह की पॉलिटिक्स हम कर ही नहीं पोलराइज करेंगे। तो आप इस बार भी देख लेना और आगे भी देखेंगे आप कि वी विल नॉट गिव सच स्पेस। ठीक है, हम लोग कॉमन पॉलिटिक्स ना तो करना चाहते हैं और नहीं ना फ्यूचर का स्कोप होगा कि 1% भी हमारे माइंड में नहीं है कि हम कॉमन पॉलिटिक्स करें यहाँ पे। भाई कॉमन पॉलिटिक्स कैन नॉट सर्वाइव ऑफकोर्स। सेकुलर डेमोक्रेसी में आप कॉमन पॉलिटिक्स का सर्वाइवल का जो चांसेस है वो 5-10% भी नहीं है। भाई आप हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए बंगाल में कर लोगे, आसाम में कर लोगे, हो सकता है कि आंध्रा में कर लो, वो वैसे सब जैसा कर रहे हैं या 2-4 सीट पे मुस्लिम लीग हो सकता है वहाँ कर ले, बट दैट इज नॉट एट ऑल there is no any chance of such politics in Rajasthan. Okay. ठीक है, But you're saying you rely mainly on your cadres, and the cadre you are referring to is Jamaat cadres. no, of course not. ठीक है, Then does your नहीं, cadres Jamaat also cadre- include cadres from other community workers from yes, other? of course from the other community also. We have already lot many other community members in our state leadership. Yes, there are some leaders, but what about cadres? You rely mainly on minority groups. In some places we have that cadres also for other community, लेकिन नो डाउट अभी बहुत कम टाइम रहा है यहाँ पे, जस्ट 1.5 year, तो अभी हम ये नहीं कर सकते कि हमारे ज़्यादातर कैडर्स जो वो हमारी कम्युनिटी के, लेकिन ये चीज़ भी हम इसको भी आई रियली डिसाइडेड टोटली फ्रॉम दिस कि ये जमात के कैडर्स हैं। जमात की अपनी इलेक्शन की अलग पॉलिसी रहेगी, आप देखेंगे कई जगह हो सकता है। अपने कर्नाटक का इलेक्शन एक एग्जाम्पल है, इसको आप जरूर रखना दें ध्यान में, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ कर्नाटक के इलेक्शन में आपने देखा कि जमात और वेलफेयर दोनों जो है अलग अलग है, और यहाँ भी हो सकता है कि जमात किस सीट पे किसको सपोर्ट करेगी, वी रियली डोंट नो। ठीक है, वी विल ट्राई टू कन्विंस कि भाई दिस इज द कैंडिडेट विच कैन क्लियर दिस सीट, लेकिन इफ दे नो अगर वो एग्री नहीं हो तो क्या करेंगे, वी कैन नॉट कन्विंस, हम उसको नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जो है कन्फ्यूजन जो है मीडिया के अंदर में, उसको न्यूरल हम आपको क्लियर करना है। इस चीज़ कि ऐसा नहीं है, जमात की अपनी एक इलेक्शन स्ट्रेटजी होती है उसकी, और शुरू से रही है जमात का अपना जो है ना, इंडिया के अंदर में आपने शुरू से देखा होगा जमात इस्लामी हिंद जो है वो हमेशा एक इलेक्शन का अपना उसका मैनिफेस्टो होता है, वो लोगों को बताती है कि किस तरह से हम फस्ताई ताकतों को, ठीक है, क्योंकि मैं जमात का भी मेंबर हूँ, आई एम मेंबर ऑफ जमात ऑल्सो, तो अगर जमात के मेंबर किससे कहें तो वहाँ पर वो चीज़ें करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वेलफेयर पार्टी का जो डिसीजन होगा वो कम्प्लीटली जमात से नहीं मैच करे, जिसको अभी आपने मैंने बताया कि कर्नाटक में देखा, हो सकता है राजस्थान में भी कहीं पर हो जाए। तो ये अब हो सकता है कि हमारे कैडर जहाँ पे काम कर रहे हैं जमात किसी और के लिए काम करेगी, इसी में हो सकता है कि अगर मेरी पार्टी अगर डिसाइड करेगी नहीं भाई यू हैव टू कंटिन्यू विद दिस कैंडिडेट, समझ रहे, जमात कहेगी नहीं आई हैव टू कंटिन्यू विद अनदर कैंडिडेट, तो वहाँ पर हमारे तो दोनों कैडर डिवाइड हो जाएंगे। Thank you for speaking to us. थैंक यू।